Hello friends, welcome back. I hope everybody are fine. My dear students, today in this video I am going to tell you about the repetition of the article. Okay, repetition of the article. Repetition of the article. Now, here we have some rules. Okay, repetition जो आर्टिकल का repetition होता है उसके लिए भी कुछ rules है. यहाँ पर मैंने लिखे. Now you can see here. When two or more descriptive adjectives qualifying the same noun are connected by and, the article is used before first adjective. You see here, when two or more descriptive adjective और adjective of quality हमने देखा है ना, descriptive adjective और adjective of quality. When two or more descriptive adjective qualifying the same noun are connected by and, same noun को वो qualify कर रहे हैं जो connected हुआ है and इस conjunction से, वो क्या करते हैं हम, the article is used before the first adjective. तो first adjective के पहले हमें क्या करना है, वो article को use करना है. For example, here is a French and English dictionary. देखो यहाँ पर French ये proper adjective है. Proper adjective भी हमने देखा है, adjective का जो chapter था. तो यहाँ पर French and English, these are the adjectives. Okay, और ये adjective किससे connect हुए हैं, तो dictionary, ये dictionary हुए. Okay, rule क्या है हमारा, when two or more descriptive adjective qualifying the same noun are connected by and, the article is used before the first adjective. यहाँ पर French and English, these are two adjectives, descriptive adjectives है. Okay, these are two descriptive adjectives और किसको qualify कर रहे हैं, single noun है, same noun है, same dictionary. Okay, तो पहले adjective के पहले हमें क्या करना है, first adjective के पहले article लगाना है, यहाँ पर a लगाया है. A French, अरे बात समझ में, a French and English dictionary, मतलब one dictionary, बात हो रही है सिर्फ एक dictionary. अरे बात समझ में, सिर्फ ये ग्रुप को अच्छी तरीके से समझ लो. When two or more descriptive adjective qualifying the same noun, जब दो या दो से ज्यादा adjective जो descriptive adjective है same noun को अगर qualify कर रहे हैं जो connected है and इस conjunction से, तो जो पहला adjective है इससे पहले आपको article का प्रयोग करना है. तो यहाँ पर क्या है, here is, यहाँ पर here is a French and English dictionary, means one dictionary, सिर्फ एक ही dictionary के बारे में बात चल रही है. आई बात समझ में? Okay. So next one, the red and white rules. देखो यहाँ पर भी सेम रूल, देखो यहाँ पर रेड और व्हाइट बात चल रही है रोज के बारे में. रोज नाउन है, अरे बात समझ में, रोज क्या है, नाउन है. क्या है यहाँ पर देखो, क्वालिफाइंग द सेम नाउन, ये यहाँ पर एक ही रोज है. ओके, कनेक्टेड बाय एंड, यहाँ पर एंड से कनेक्ट हुआ है, द आर्टिकल यूज्ड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव. देखो रेड एंड व्हाइट, दिस आर दी, क्या है ये, एडजेक्टिव्स है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वालिटी के बारे में बताने वाले एडजेक्टिव्स है, रेड एंड व्हाइट. तो पहले एडजेक्टिव के, मतलब पहला जो एडजेक्टिव से पहले हमें आर्टिकल यूज करना है, यहाँ पर किया है, द रेड एंड व्हाइट. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके, चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो उसकी ओर बढ़ते हैं. When two or more adjectives qualify different nouns, अभी देखो ऊपर का जो था वो सेम नाउन था, यहाँ पर सेम है, सिर्फ वहां पर क्या है, डिफरेंट नाउन्स है. ओके, when two or more adjectives qualify different nouns expressed or understood, the article is used before each adjective. जो रूल था यहाँ पर सिर्फ सेम नाउन थे, यहाँ पर डिफरेंट नाउन है. अगर डिफरेंट नाउन है तो दोनों भी नाउन के सामने आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है. आगे बात समझिए, when two or more adjectives qualify different nouns expressed or understood, the article is used before each adjective. Okay, for example, the inner and outer walls were both strong. Okay, तो यहाँ पर इनर ये एडजेक्टिव है और आउटर ये एडजेक्टिव है, यहाँ पर द लगा रहा है, दोनों के ही सामने
द लगाना है। द इनर यहाँ पर द लगाया मैंने और ये यहाँ पर भी द लगाया है। द इनर एंड द आउटर वॉल्स वेयर बोथ स्ट्रांगली डिफरेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है द, यहाँ पर रेड है और द व्हाइट। द रेड एंड द व्हाइट रोज, मतलब टू रोजेस। द रेड पर्टिकुलर द हम यूज करते हैं पर्टिकुलर डेफिनेट थिंग के लिए, तो द रेड रोज एक अलग है और व्हाइट रोज एक अलग है। यहाँ पर दो रोज की बात चल रही है, दो गुलाबों की बात चल रही है। ओके, द फ्रेंच, अभी देखिए यहाँ पर भी द फ्रेंच एंड द इंग्लिश, ये लैंग्वेज है ना, दो एडजेक्टिव है, दोनों के भी एडजेक्टिव के पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, क्या यूज किया है, आर्टिकल को यूज किया है। आगे का समझ लो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज रूल्स। पहले रूल अच्छी तरीके से समझ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं हम। When two or more connected nouns refer to the same person, देखो when two or more connected nouns refer to the same person or thing, the article is ordinarily used before the first only। देखो यहाँ पर क्या है, when two or more connected nouns, एक या एक से ज्यादा कनेक्टेड नाउन से जो कि एक ही इंसान को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो ऐसे जो सिचुएशन होती है यहाँ पर हमें क्या करना है, जो फर्स्ट होता है उससे पहले ही हमें एडजेक्टिव लगाना है। फॉर एग्जांपल, दे डिसमिस द सेक्रेटरी एंड अकाउंटेंट। सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी और अकाउंटेंट की जो पोजीशन है एक ही पर्सन के पास है। ओके, सेम पोजीशन होल्डिंग बाय अ सिंगल पर्सन, इस वजह से यहाँ पर क्या किया है, द का प्रयोग किया है। ओके, सो दीज आर दी थ्री रूल्स। नेक्स्ट, और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। ओके, ये भी रूल अच्छी तरीके से समझ लो। व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स, एक या एक से ज्यादा कनेक्टेड नाउन से जो रेफर कर रहे हैं अलग अलग इंसान को या चीजों को, तो आर्टिकल हमें क्या यूज करना है, द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन। जो भी नाउन है वो हर नाउन के पहले हमें आर्टिकल को यूज करना है। फॉर एग्जांपल, दे डिसमिस, ओके, दे डिसमिस द सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी एक नाउन है और यहाँ पर ये अकाउंटेंट भी नाउन है। ओके, तो इससे पहले भी हमने द यूज किया है और इससे पहले भी हमने द यूज किया है। According to our rule, when two or more connected nouns refer to different persons or things, different person को क्या कर रहे हैं, क्या रेफर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, आर्टिकल को यूज करना है हर नाउन के पहले। तो यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड द अकाउंटेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर एंड द गार्डियन। यहाँ पर देखो टीचर नाउन है, यहाँ पर द यूज किया है, गार्डियन नाउन है, यहाँ पर भी द यूज किया है। Okay, when two or more connected nouns refer to different person or thing, the article is used before each one. Okay, next one, an expressive comparison। अगर कहीं पर comparison हो रहा है, okay, comparison हो रहा है, if two nouns refer to the same, देखो two nouns, if two nouns refer to same, if two nouns refer to the same person or thing, two nouns refer to the same person, the article is used before the first noun only। पहले नाउन के पहले हमें यूज करना है। फॉर एग्जांपल, वेलिंगटन वाज अ ग्रेटर सोल्जर देन अ स्टेटमेंट्स। क्या है, एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन इफ टू नाउन रेफर टू द सेम। दो नाउन है, क्या क्या है नाउन, देखो वेलिंगटन वाज अ ग्रेटर सोल्जर, यहाँ पर देखो सोल्जर भी है, यहाँ पर ग्रेटर, ये यहाँ पर है आर्टिकल यूज किया है, और स्टेटमेंट। तो अ ग्रेटर यहाँ पर ये पहला जो है, उससे पहले हमने ग्रेटर के पहले हमने क्या किया है, ये जो नाउन है सोल्जर से पहले हमने यूज किया है। क्या है, वेलिंगटन वाज अ ग्रेटर सोल्जर देन अ स्टेटमेंट। अगर इफ द टू नाउन्स रेफर टू द डिफरेंट पर्सन, अगर दो नाउन्स हैं लेकिन वो डिफरेंट पर्सन या थिंग को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो आर्टिकल मस्ट बी यूज्ड विद ईच नाउन। हर नाउन के साथ जैसे यहाँ पर किया है वैसे नाउन के साथ यूज करना है। जैसे ही इज अ बेटर यहाँ पर, और ही इज अ बेटर सोल्जर देन अ स्टेट्समैन, दोनों।
Okay, so this is about the repetition of article. You need to copy down everything in your notebook. Okay, after this I will give you the exercise.